चिल्ड्रन वेलकम टू द क्लास। होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो हम पढ़ रहे हैं एक्लीज, इट्स अ स्टोरी अबाउट अ जर्मन हीरो। तो हमने उसके पहले 2 पार्ट्स जो हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं और अच्छे से समझ भी आ गया है आपको। तो बहुत मज़ेदार स्टोरी है ये, बहुत मज़ा आ रहा है इसे पढ़ने में। तो आज हम आगे पढ़ेंगे कि व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, आगे आगे क्या होता है। ठीक है, तो उस इंग्लिश मैन के साथ जब वो एक स्ट्रेंजर सा वो जो क्रिएचर उसने देखा है, तो आगे उसके साथ आगे जाके क्या क्या होता है और वो उससे वो कौन होता है, क्या होता है, कहाँ से आया होता है, ये हमें जब हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद हमें पूरा इसके बारे में पता चल जाएगा। जो ये है, इट्स टेकन फ्राम दिस स्टोरी इज़ टेकन फ्राम माय फैमिली एंड अदर एनिमल्स, ये बाय गिराल ड्यूरेल, उसी ने लिखी हुई है ये। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करूँ मैं। आप अपनी प्लीज़ बुक्स निकाल लें, पेज नंबर 86 है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आई विल रीड फॉर यू। ठीक है, तो आप अच्छे से सुनना। आई आस्क्ड द रोज बीटल मैन द प्राइस ऑफ द लिटिल टॉर्टोइज। ही हेल्ड अप बोथ हैंड्स, फिंगर्स स्प्रेड आउट. आई shook my head firmly and held up 2 fingers unconsciously, imitating him. He closed his eyes in horror at the thought and held up 9 fingers. I held up 3. The rose beetle man looked sorrowful and sighed. So we sat in silence and started at tortoises crawling uncertainly about the road. Then the rose beetle man picked up the reptile and showed me in pantomime how lovely its shell was. He handed me the tortoise and held up 5 fingers. I told him then that I had no money on me and that he would have to come to the villa. He nodded as if it were the most natural things in the world, excited by owning this pet. I wanted to get back home quickly to show it to everyone, so I hurried off along the road. Before diving down the hillside, I glanced back. The rose beetle man was still in the same place on the road, warbling his flute. The new arrival was Christian Achilles and turned out to be an intelligent beast with a sense of humor. He learned his name soon. We had to call out once or twice and he would appear lumbering along on tiptoe. He loved being fed and would squat regally in the sun while we held out bits of lettuce. He loved grapes as much as Roger did, so there was always great rivalry. Achilles would sit mumbling the grapes in his mouth, the juice running down his chin. Roger would lie watching him, his mouth drooling saliva. Roger always had his fair share of the fruit, but even to be seemed to think it was a waste to give delicacies and to the tortoise when the feeding was over. If I didn't keep an eye on him, Roger would creep up to Achilles and lick him vigorously to get the grape juice that the reptile and dribble down on himself. Achilles would retreat into his shell with an indignant wheeze and refuse to come out until we had removed Roger from the scene. But the fruit that Achilles liked best was wild strawberries. He would become hysterical at the mere sight of them. The small strawberries he could devour at a gulp. For they were the size of a fat pea, but if you gave him a big one, he would grab the fruit and holding it firmly in his mouth, stumble off at top speed until he reached a quiet spot among the flower beds where he would eat it at a leisure. Achilles also developed a passion for human company. Let anyone come into the garden and there would be a rustling among the bushes, and Achilles' wrinkled and earnest face would poke through. If you were sitting in a chair, he contented himself with getting as close to your feet as possible, and there he would sink into a deep sleep. If you were lying on a rug sunbathing, he would sit down the path and onto the rug with an expression of bemused good humor on his face. He would survey you and then choose a portion of your body on which to practice mountaineering. If you shook him off, it would only give you temporary respite. For Achilles would circle the garden until he found you again. Then one day the garden gate was left open. Achilles was nowhere to be found. Search party were immediately organized at the family wandered about the olive groves shouting Achilles, strawberries, Achilles. At length we found him. He had fallen into a well, the wall of which had long since disintegrated. He was, to our regret, quite dead. Even Leslie's attempt at artificial respiration, Margot's suggestion of forcing strawberries down his throat to give him, as she explained, something to live for, failed to get any
response. His corpse was buried in the garden under a small strawberry plant. A short funeral address read in the trembling voice by Larry made the occasion memorable. It was only married by Roger, who, in spite of all my protests, insisted on wagging his tail throughout the burial service. So what happened? आगे क्या होता है? तो आगे क्या होता है, ये जब द इंग्लिशमैन आस्क्ड द रोज बीटल मैन, उसको पूछता है कि व्हाट्स द प्राइस ऑफ द लिटिल टॉर्टोइज. तो वो अपने दोनों हाथ उठाता है, फिंगर्स स्प्रेड आउट. आई शोक माई हेड फर्मली एंड हेल्ड अप टू फिंगर्स अनकॉन्शियसली इमिटेटिंग. जैसे वो कर उसने अपनी ऐसे हाथ उठाए तो इसने भी उसको वैसे ही उसकी नकल करके वैसे ही किया. तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली तो उसने 9 फिंगर्स उठाई, तो मैंने 3 उठाई. तो रोज बीटल मैन जो था लुक्ड सॉरोफुल और मतलब थोड़ा दुखी नजर आया और ही साइड. सो वी सेट, तो हम थोड़ी देर के लिए वो खामोश हो गए. एंड स्टार्टेड एट द टॉर्टोइज क्रॉलिंग. वो देखने लगे वो टॉर्टोइजेस कैसे क्रॉल कर रहे थे. देन द रोज बीटल मैन ही पिक्ड अप उसने रिप्टाइल को उठाया एंड शोड मी उसने उसको उठा के उसे दिखाया. हाउ लवली दे सी कि इसका शेल कितना खूबसूरत है. ही हैंडेड मी, उसने मुझे टॉर्टोइज को दिया एंड हेल्ड अप 5. उसने 5 फिंगर से कि इतने का है ये 5 फिंगर्स. आई टो 500 का है ना, या $5 से ऐसा ही कुछ. आई टोल्ड हिम देन आई हैड नो मनी ऑन मी एंड देन ही वुड हैव टू कम टू द. तो मैंने उसे कहा कि मेरे पास पैसे नहीं, आपको मेरे विला आना है और वहाँ से पैसे ले. उसने ऐसे सर हिलाया और कहा कि दैट वाज द मोस्ट नेचुरल थिंग इन द वर्ल्ड. तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइट था उसे, उस पेट को लेते हुए ना, उस टॉर्टोइज को. तो मैं आई वांटेड टू गेट बैक होम क्विकली. मैं जल्दी घर जाना चाहता था और उसे घर में सबको दिखाना चाहता था. मैं इतनी जल्दी में था. बिफोर ड्राइविंग होम डाउन द हिल साइड्स ऑफ ग्लैंस, जब मैं वहाँ से गाड़ी चला के जा रहा था तो मैंने पीछे मुड़ के देखा. वाज स्टिल इन द, वो उसी प्लेस वहीं पे खड़ा हुआ था रोड पे. तो वो अपनी वो फ्लूट को क्या कर रहा था, ही वाज रैपलिंग हिज फ्लूट. तो अब जब द न्यू अराइवल वाज क्रिश्चियन एक्लीज एंड टर्न्ड आउट टू बी एन इंटेलिजेंट बीस्ट विद अ सेंस ऑफ ह्यूमर. ही लर्न हिज नेम, उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया, एक्लीज. उसको उसका नाम जल्दी याद हो गया. वी हैड टू कॉल आउट वंस और ट्वाइस एंड ही वुड अपीयर लंबरिंग अलोंग ऑन टिपटो. ही लाउड भी, उसको खिलाना बहुत अच्छा लगता था, उसको ऐड करता था रेगुलरली. ठीक है ना. वो लिट्यूस खाता था, ग्रेप्स उससे अच्छी लगती थी. जितनी रॉजर उसका डॉग था, जितनी उसको अच्छी लगती थी इतनी उसको भी. सो देयर वाज, इसलिए उनके आपस में थोड़ी राइवलरी ना, थोड़ी दुश्मनी, क्योंकि वो उससे भी अच्छी लगती थी. अब उस रॉजर के साथ साथ उससे भी काफ़ी ज़्यादा केयर मिलने लग गया था नेचुरली. तो जेलसी थोड़ी सी आई गई थी उनमें. अब वो क्या कहता है कि हम रॉजर ऑलवेज हैड फेयर स्टार्ट ऑफ द शेयर ऑफ द फ्रूट, बट इवन टू बी सो ही सीम टू थिंक इट वॉज वेस्ट टू हैव डेलिकेसीज टू इट. और उसे लगता था कि इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, इतने अच्छे अच्छे फ्रूट्स एक टॉर्टोइज को क्यों दिए जाएं. जब फीडिंग खत्म हो जाती थी, अगर मैं उन पे नजर नहीं रखता था, वो जो रॉजर था, ही वुड क्रीप ऑन अपॉन एक्लीज एंड लिक हिम. और उसको विगरसली क्या करता था, उसे लिक करता था. क्या करता था, लिक करता था टू गेट द ग्रेप जूस, है ना. वो लिक करता था वो ग्रेप जूस और ड्रिबल करता था डाउन ऑन हिमसेल्फ. एक्लीज वुड retreat onto his shell with an indignant wheeze and refused to come out until we had removed Roger. वो तब तक बाहर नहीं, अपने शेल से नहीं आता था जब तक हम रॉजर को वहां से निकालते नहीं थे. क्योंकि वो अब उसे रॉजर को जब वो एक ही पेट था, अब उनके साथ साथ उनके पास अब दूसरा पेट हो गया था. तो नेचुरली उनको आपस में क्या हो गई थी, आपस में थोड़ी बहुत वो आपस में राइवलरी आ गई. थोड़ी एक दूसरे को, एक देखता था कि इसको ज्यादा केयर मिल रहा है तो उससे थोड़ी सी जेलिसी आ जाती है. तो स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह. तो बाकी मैंने रीडिंग करा दी है, कल मैं आपको इसका मीनिंग भी समझा दूंगी. तो कल आई होप कल ये वाली स्टोरी जो है ये कल हम ख़त्म कर लेंगे इंशाल्लाह. ठीक है. तो प्लीज़ आप इस यू गो थ्रू दिस स्टोरी, आप इसे अच्छे से पढ़ लें. आप उस तरह इसको अच्छे से रीड करेंगे तो आपकी समझ में भी अच्छे से आ जाएगा. तो इंशाल्लाह बाकी की जो स्टोरी है वो हम कल पढ़ेंगे. थैंक यू वेरी मच. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.